Hello, everyone. Good morning. Am I audible to all of you? আমার মুড়ি ওখানে তো चलो हम फ्यू ठीक है। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बता दो, उसके आगे पढ़ेंगे आज। व्हाट वाज डिस्कसिंग? ओके, रिप्रोडक्शन, फाइन। चलो, so let us start and continue our discussion. चलो so next criteria what we're going to discuss, that is your reproduction. ठीक है। Now reproduction, we know there are two types of reproduction basically. One is your asexual, another one is your sexual. ठीक है। So as we know that in case of the asexual reproduction, there is no formation, there is no formation of gametes, but in case of sexual reproduction, the gametes will form. That is the main difference. ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, like दो टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, वन इज मेल अदर वन इज फीमेल। तो पेरेंट यहाँ पे दो होते हैं। But in case of asexual reproduction, the same organism can reproduce by budding or by binary fission, by fragmentation, by formation of gemmules. ठीक है। तो ये आपने पहले भी आपने देखा होगा कि asexual reproduction
Yeah, regeneration. These are the different way by which the asexual reproduction is happening. But in case of sexual reproduction, there must be uh, formation of gametes. Gametes बनना जरूरी है. ठीक है. Now, what happen? Normally, there can be two parents. Normally, there must be two parents in case of the sexual reproduction. But happens like in case of earthworm, that is one of the example, and some of the other organisms like other worms like flatworms. So in that case, what is happening? In that case, what is happening? That this both the uh, reproductive system, male and female, are present in a single organism. Okay, in a single organism, and then we call them as hermaphrodite. Okay. चलो चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब देखो कुछ एनिमल होते हैं जो कि अपना जो बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन कर सकते हैं, और कुछ एनिमल होते हैं जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. सो द एनिमल हु कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, they are called homeotherms. They always maintain a constant temperature. Like example, we are also homeotherms. In our case, we have a constant body temperature, so we maintain the body temperature. And there are some organisms, those who are not able to maintain the body temperature, like the frog. Those are known as cold-blooded animals. Snake is also reptiles, basically. If you name the group of the animal, that is reptiles. They're cold-blooded. Okay, so they are not able to maintain a constant temperature. So what they do, they can change or they can actually increase or decrease the temperature of their body according to the environmental temperature. तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, देखना यूट्यूब में होगा, आप चाहो तो देख सकते हो उसको. उसमें क्या किया है, जो एक्टिविटी ने क्या किया है, उसमें एक कंटेनर लिया है और नीचे फायर रख दिया है गैस के ऊपर, और उस पर उन्होंने क्या किया, एक थर्मोमीटर रखा हुआ है. ठीक है, वन थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर. उसमें पानी ले लिया और उसमें एक लाइव फ्रॉग को छोड़ दिया. ठीक है, तो जब उन्होंने वहां पे लाइव फ्रॉग को छोड़ दिया और बॉइलिंग स्टार्ट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, यू नो. ऐसा अगर होगा तो क्या होगा बताओ. एम्फीबियंस भी जो होते हैं, रेप्टाइल जो होते हैं, ये लोग सब आपका कोल्ड ब्लडेड होते हैं. एम्फीबियंस भी वही है, फ्रॉग तो एम्फीबियंस में आता है. फ्लैक्चुएट टेम्परेचर टू द एनवायरमेंट मतलब couldn't understand, Gaurav. What do you want to say? Animal which can't manage their body temperature, they don't have thermoregulator system, they will die. Sir, reptiles. सर रेप्टाइल, मैं रेप्टाइल हूं. चलो जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट सीरियसली. देखो क्या होगा अगर हम उस एक्टिविटी को देखना, यूट्यूब में अवेलेबल है ये वाला एक्टिविटी मैंने जो बोला, तो आप देख सकते हो. उसमें होता क्या है कि आपका जो फ्रॉग है, क्योंकि मैं वो कोल्ड ब्लडेड है, उसको क्या है, व्हाट दिस एनिमल कैन डू, द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे कैन इंक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. लेकिन अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर हम बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेंगे, तो मान लो अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया, तो हम भी अपने बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री कर लेंगे. तो नाउ यू टेल मी, इज इट ओके फॉर अस टू सर्वाइव एट दिस मच ऑफ टेम्परेचर? अगर हमारा बॉडी में 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? हमारे सेल, हमारा टिश्यू, हमारा ऑर्गन्स काम करेगा? नहीं करेगा. द सेम इज हैपनिंग विद दिस फ्रॉग. Irrespective of the environmental temperature, it will, irrespective of its body condition, it will increase the temperature according to the environmental condition. तो ऐसे करते करके 60-70 डिग्री तक ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो फ्रॉग सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा. The frog will die. Now I think all of you realize that why the organism who are higher organism, or those who are complex
organism, advanced organism like mammals, why they have homeotherm or homeotherm? Why they are homeotherm? Why they have a constant body temperature? Because the environmental temperature, if increase or decrease, if we change our body temperature accordingly, so we may die. That is why we always, for survival reason, we always maintain a constant temperature irrespective of environmental condition, environmental temperature. got the evolutionary point or evolutionary reason? क्लियर है सबको? समझ में आया ना? तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उसको हम बोलते हैं पाइकिलोथर्म्स, और जो वार्म ब्लडेड एनिमल है या जो अपना मेंटेन करते हैं अपना अपना टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं होम्योथर्म्स। समझ लो। डाउट किसी को है क्या? है तो बोलो। It is very easy and I suggest you to see that activity if you want. YouTube में है, बस उसी को देखना, उसके देखने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, मैंने बोला ना कि जो भी अगर होगा YouTube में देखने लायक कोई भी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो ये एक्टिविटी देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरह एक्सपेरिमेंट है YouTube में अवेलेबल है, तो उसमें दिखा रहा है इतना हुआ तो फ्रॉग कैसे मर गया। ठीक है, चलो, यू ऑल गॉट माई नोट्स ना? I believe by this time. Yes, so you please have your notes along with you whenever we are having class, because I may ask you to open some page and take a note of it. समझ में आया ना? तो नोट अपने पास रखना। अब देखो, पाइकिलोथर्म्स कहते हैं हम किसको? कोल्ड ब्लडेड को। ठीक है, देखो मेरे नोट्स में भी लिखा होगा पाइकिलोथर्म्स। ठीक है, किसमें रिसेंड करूं? बालाजी, विजय, कदम? देखो ग्रुप में है, इट्स ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप। मैंने ग्रुप में शेयर किया है। आई थिंक यू आर नॉट इन द ग्रुप। ग्रुप में तो होगा, मैंने डिलीट नहीं किया, ग्रुप में ऑलरेडी है। आई हैव नॉट डिलीटेड। अच्छा, व्हाट्सएप में तो नहीं होता ना, लेट ज्वाइन करोगे तो नहीं मिलेगा। प्लीज समवन एल्स शेयर विथ हिम, प्लीज समवन प्लीज शेयर इट अगेन। किसी के पास है ना तो उसको फिर से शेयर कर दो ग्रुप में। हाँ, इसीलिए टेलीग्राम का ग्रुप अच्छा है, मैं इसीलिए सोचा टेलीग्राम का बनाऊंगा ग्रुप एक, उसमें सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो पाइकोलोथर्म्स का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, इसमें में दो तरह के फिनोमिना दिखता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। एक होता है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, दूसरा होता है एस्टिवेशन। एक होता है हाइबरनेशन, दूसरा होता है एस्टिवेशन। अच्छा, हाइबरनेशन क्या है? विंटर स्लीप। एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप। अब ये जो एनिमल है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसमें कुछ एनिमल जो है समर स्लीप करते हैं, मतलब समर में वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और कुछ एनिमल होते हैं जो कि विंटर में ऐसा करते हैं। तो हाइबरनेशन मतलब है तो विंटर स्लीप, एस्टिवेशन मतलब होता है समर स्लीप। सो जो एनिमल समर में इनएक्टिव रहता है उसको हम बोलते हैं देन दैट फिनोमेना इज नोन एज एस्टिवेशन। Animal who are actually inactive, metabolically inactive in the winter season, that phenomena is called hibernation. Clear है? चलो चलो, आया समझ में? So these are the different criteria that we actually need to consider. We need to consider before we categorize any animal. इसके अलावा और भी है बहुत सारे क्राइटेरिया, तो हम सब नहीं पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। जब भी हम एनिमल कोई भी नया एनिमल हमें मिलेगा, तो हम उसको जब कैटेगराइज करेंगे, जब उसको हम सेपरेट क्लासिफाई करेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो हमें बेसिकली एटलीस्ट ये सारे जो क्राइटेरिया है उसको ऑब्जर्व करके उसके बेसिस में हम उसको किसी एक ग्रुप में डाल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? समझ लो। तो अभी आप लोग एक पेज देखो आपके नोट में, जहां पे एनिमल किंगडम एक टेबल मैंने दिया है।
बुक में भी होगा वो टेबल, यहाँ पे मैंने, तो आप देख सकते हो बेसिकली एनिमल किंगडम को हम अगर देखेंगे, सो एनिमल किंगडम it can be divided into basically two different class. One is non-coordinate, another one is your coordinate. ठीक है, तो नॉन कोऑर्डिनेट मीन्स नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, कोऑर्डिनेट मीन्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड क्या होता है? It is a long, elongated, cylindrical, solid structure which is working as a framework. So notochord was first developed to provide a framework to the animal. So those animals who are having the notochord, they are called quadate. Those who are not having notochord, they are called non-quadate. That is a basic difference. तो आप टेबल में देख सकते हो कि पूरे एनिमल किंगडम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है बेसिकली. एक होता है नॉन क्वाडाटा, दूसरा होता है क्वाडाटा. नॉन क्वाडाटा में मतलब अभी मैंने बताया नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, क्वाडाटा और क्वाडेट्स मतलब होता है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड क्या मैंने बताया? सॉलिड hollow, sorry, not hollow, it's a solid elongated cylindrical structure which is providing the framework of the body of the animal. ठीक है, so later on animals what happened, this notochord is actually converted into or replaced by vertebral column, like in our case we are vertebrates. ठीक है, so this is the main reason of this notochord is what, to maintain or to provide the framework of the body of the animal. तो अगर आप नोटोकॉर्ड वाला जो मैंने आपको पेज में लिखा है, so please open that page. So you can see that notochord, we're having many phylum under notochord like Porifera. ठीक है, Porifera, then we have Cnidarians, Cnidaria. ठीक है, और जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं. देन नंबर 3 वी आर हैविंग टिनोफोरा, देन प्लैटीहेलमिंथस, देन एसेलमिंथस, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्माटा, देन हेमिकॉर्डाटा. सो देयर आर 10 different phylums under the category or under the division of non-quadrate. So non-quadrates में कितने हमें फाइलम मिलेंगे? सबको मिला वो वाला पेज? देखो जो मैंने दिया हुआ है, एवरीवन गॉट दैट पेज? निकाला, देख रहे हो? Yes. So we can find there are 10 phylum. 10 phylum. ठीक है, एक होता है आपका पेज नंबर, मुझे ऐसे कुछ पेज नंबर आई थिंक आई थिंक 36, पेज नंबर 36 पेज नंबर चेक करके देखो, 36 या 37 कुछ तो ऐसा होगा. ठीक है, चलो. सो उसमें देखो पोरीफेरा होगा, निडेरिया होगा, ठीक है, उसके बाद आपका टिनोफोरा, ठीक है. So let me open that page, it will be easy for you to discuss. Just give me a minute. না বাবা পড়াচ্ছে শুয়ে ঘরে শো Just give me a minute.
चलो, आई कैन शो यू नाउ दैट पेज। अच्छा, किसी ने लिखा है, अमित ने, सर इन हेमिकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन, सो हाउ कैन इट इन नॉन कॉर्डेट्स? तुमने तो पढ़ लिया है अभी सब कुछ, अभी तो मैंने पोरीफेरा भी नहीं पढ़ाया और तुम चले गए हेमिकॉर्डर तक, तो अभी मैं क्या डिस्कस करूं, है ना? यू नो दैट ऑलरेडी, देन व्हाई यू आर आस्किंग मी? सो यू आर प्रेजेंटिंग योर नॉलेज, आई डोंट नो। सिंपल, जैसे करोगे वैसे मैं वैसे ही आदमी हूँ। मैंने पूरी फेरा स्टार्ट नहीं किया अभी और तुम चले, और वहां पे ये भी बोल रहे हो प्रोबोसिस है, दैट मींस यू नो। नाउ यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कोलार भी होगा, ये भी तुमको पता होगा, बॉडी का जो पार्ट है प्रोबोसिस, उसके बाद क्या होता है बताओ? कोलार होगा, ट्रंक होगा, पता है ना? पता है कि नहीं, बताओ अमित? यस, सो यू नो, देन व्हाई यू आस्किंग? इफ यू नो देन यू कीप क्वाइट, let the other people learn. Yeah, thank you very much. So now let us see this table. So this is the table I have just now I bought. देखो, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एनिमल किंगडम को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक होता है नॉन क्वाड्रेटा, दूसरा होता है क्वाड्रेटा। तो नॉन क्वाड्रेटा और क्वाड्रेटा के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैंने बताया, नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट्स इलांगेटेड सॉलिड स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल। मेन पर्पस क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके कि क्वाड्रेट्स और नॉन क्वाड्रेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसमें हम देखेंगे, एम्फियोक्सिस एग्जांपल है, उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो डेवलप हुआ था नोटोकॉर्ड, एम्फियोक्सिस में डेवलप हुआ था। क्यों डेवलप हुआ था? टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी फॉर प्रॉपर मूवमेंट। एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि अगर सिर्फ बहुत सारे सेल आगे एक जगह पे एग्रीगेट हो जाए, सो इट विल एक्चुअली क्रिएट अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर। सो एक नॉर्मल एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर तो मूव नहीं कर सकता। So for movement, the particular organism should have a proper framework. So for the first time, the lower organism during the course of evolution, the notochord was developed actually. ठीक है? तो नोटोकॉर्ड के बेसिस में हम क्या करते हैं, एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर आगे जाके हम क्या देखेंगे कि जो हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या हुआ, नोटोकॉर्ड भी रिप्लेस होके वर्टिबल कॉलम हो गया। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, हर एक जो हर एक फाइलम आएगा, हर एक कैटेगरी आएगा, तब मैं उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो एनिमल किंगडम को हम दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉन क्वाड्रेट्स, दूसरा होता है क्वाड्रेट। तो पहले पोर्शन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन क्वाड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे? ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक ऑर्गेनिज्म है, जो एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिससे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो हम पहले नॉन क्वाड्रेट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन क्वाड्रेट्स में हम क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा, निडेरियंस, स्टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एसेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्मेटा, देन फाइनली हेमिकॉर्डेटा। और तब मैं आपको बताऊंगा कि हेमिकॉर्डेटा को एक्चुअल में क्यों हम हेमिकॉर्डेटा को कहते हैं। हाफ क्वाड्रेट, हेमी मतलब होता है हाफ, तो ये कंप्लीट क्वाड्रेट नहीं है। पहले इसको हम रखते थे नॉन क्वाड्रेट्स में, एक्चुअली अभी प्रेजेंटली हम इसको ना ही नॉन क्वाड्रेट में रखते हैं ना ही क्वाड्रेट में रखते हैं, इसीलिए इसका नाम ही हमने अलग कर दिया हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अच्छा, अब ये व्हाइट टेकर के बारे में आपने पढ़ा होगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा क्वाड्रेट्स में अगर आप देखोगे तो कितने कैटेगरीज हैं यहाँ पे देखो, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये जो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होता है ना, नोटोकॉर्ड कहाँ पे होता है? यूरोकॉर्डेटा में उसका लोकेशन अलग है, सेफेलोकॉर्डेटा में उसका लोकेशन अलग है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उसके बेसिस वर्टिब्रेट्स में मैंने क्या बताया था, नॉन क्वाड्रेट जो है रिप्लेस, तो नॉन क्वाड सॉरी नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस होकर क्या हो जाता है, वर्टिबल कॉलम हो जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नैथोस्टोमाटा, ए नैथोस्टोमाटा। ठीक है, उसके बाद नैथोस्टोमाटा और एनोथोस्टोमाटा का मतलब डिफरेंस क्या है? नैथोस्टोमाटा का मतलब डिफरेंस होता है कि एनिमल्स विद जॉ, ठीक है, एंड एनैथोस्टोमाटा मतलब होता है एनिमल्स विदाउट जॉ। ठीक है, मतलब जिस एनिमल के पास जॉ नहीं है उसको हम कहते हैं एनैथोस्टोमाटा, और जिसके पास जॉ है उसको हम बोलते हैं नैथोस्टोमाटा। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स को फिर हम अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जिस एनिमल के पास जॉ है उसको हम बोलेंगे नैथोस्टोमाटा, जिसके पास नहीं है उसको हम बोलेंगे एनैथोस्टोमाटा। नाउ द नैथोस्टोमाटा और नैथोस्टोम्स कैन बी डिवाइडेड इन कैटेगरीज, एक होता है पीसेस, दूसरा होता है टेट्रापॉड्स। पीसेस बोले तो मछली, फिश की बात करते हैं। ठीक है, फिर फिशेस को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बोनी फिश जिसको हम बोलते
बोलते हैं ऑस्टिक्थाइस, दूसरा होता है कॉन्टिक्थाइस जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश। देन टेट्रापॉड मींस द एनिमल्स हु आर लिविंग ऑन लैंड। टेट्रा मतलब है 4, तो जिसके पास 4, जिस एनिमल के पास 4 लिम्स है उसको हम बोलते हैं टेट्रापॉड। जैसे आप देखोगे एग्जांपल, लैंड में जो भी आपके ऑर्गेन जो एनिमल्स है उसमें कौन से आएंगे, टेट्रापॉड में कौन से आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, एव्स आएंगे, मैमल्स आएंगे। तो हम सबके बारे में करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक था, मतलब आपको जस्ट मैंने बताया कि चलो यहां तक क्लियर है सबको। चलो ठीक है, तो अभी इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फर्स्ट एक फाइलम से। अच्छा, विदाउट जॉ एनिमल, लैम्फ्रे इज द एग्जांपल, पेट्रोमाइजन एग्जांपल। ठीक है, लैम्फ्रे, पेट्रोमाइजन। अभी मैं एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब आएगा वो पार्ट हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो विद डायग्राम विद एग्जांपल सब कुछ मैं दूंगा, आपको नोट्स भी मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। खिश्तीजा ने कहा कि सर आपने ग्रुप में भेजा क्या? हाँ, मैंने ग्रुप में भेज दिया। ग्रुप में मैंने ग्रुप बना के मैंने आपका जो नोट्स है मैंने भेजा हुआ है। लेट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड द ग्रुप? सबने ज्वाइन किया क्या? चलो, अच्छा किसी ने एक चीज और बताया था, कौन था? साक्षी ने कुछ लिखा है, हाँ मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, देखो एक चीज है कि कॉर्डेट्स का, साक्षी ने कह रहा है, साक्षी कह रही है कि सर फेरेंजियल गिल स्लिट्स है कि नहीं। हाँ देखो, कॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं कॉर्डेट स्टार्ट नहीं किया तो मैंने इसलिए मैं डिटेल में बताया नहीं। जब हम कॉर्डेट पढ़ेंगे, डिटेल में स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं वो सब बताऊंगा, मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, एम्फिओक्सिस का डायग्राम बनाएंगे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जब बोला तो मैं बता देता हूँ। नोटोकॉर्ड में क्या मतलब, आपके क्वाड्रेट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए? उसमें नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए और पोस्ट चैनल टेल होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके क्वाड्रेट्स का। तो क्वाड्रेट्स का सिर्फ नोटोकॉर्ड ही ये कैरेक्टरिस्टिक, हाँ वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन साथ में ये भी सारे जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, हॉलो नर्व कॉर्ड है, पोस्ट चैनल टेल है, ये सारे भी क्वाड्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, चलो एंड no, not position of the heart, Gaurav, no. Position of heart is not, it doesn't matter, it's not a characteristic in case of quadrids. Quadrids का characteristic feature position of heart से नहीं होता है। ठीक है, वो अलग है। चलो फाइन। देखो मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को लग सकता है कि सर थोड़ा रूड है, या सर हम लोग डाउट पूछते हैं तो सर हमको ऐसा बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज फिर से आज थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, और आप मान लो कि हमने अभी स्टार्ट किया है कहीं ए से, पॉइंट ए से, और हम जाएंगे पॉइंट जेड तक। तो अभी हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए और आप बात कर रहे हो वाई के बारे में, तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा, कोई भी इरिटेट हो जाएगा। अभी मान लो आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने बैठा और बीच में आपको बायोलॉजी के डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, नो इट इज, आई अप्रिशिएट इफ समवन इज हैविंग नॉलेज एंड समवन इज getting knowledge and reading books and doing hard work, I appreciate that. But as I told you कि अभी हम सबको लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, हमें थोड़ा 10th में भी पढ़ा था, हाँ पढ़ा तो है, मुझे पता है, लेकिन इतना जितना भी पढ़ा है उतना तो डिस्कस जब जरूरत पड़ेगा तब करना है ना, ये भी तो मानना पड़ेगा आपको ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के बेसिक क्लासिफिकेशन की। वहां पे हेमिक्वाडाटा में प्रोबोसिस है,
उसके बारे में बात कर रहे हो। सिर्फ हेमिकॉर्डाटा के बारे में पूछते तो भी होता है ना। अब हेमिकॉर्डाटा में प्रोबोसिस, इसका मतलब आपको कोलार, प्रोबोसिस, ट्रंक, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर वो पता है, ठीक है। तो आप तो ये भी देखोगे ना कि बाकी बच्चों को भी तो देखना है, सबको देख के चलना है, यही तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। See, knowledge is appreciated, always is appreciated. I always appreciate the people who are hardworking and knowledgeable and intelligent. But if you are an intelligent person and if you are hardworking, if you are having knowledge, then you should also have patience. That is also a good characteristic feature of a gentleman or a person who is intelligent, or a boy or a girl, whatever it is. It doesn't matter. अगर आप बुद्धिमान हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपके पास नॉलेज है, तो सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इंटेलिजेंट और नॉलेज पर्सन का, कि वो सबके साथ आगे बढ़ता है, वो सबको रिस्पेक्ट करता है, समझे। तभी आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप भले कितने बड़े अचीव कर लो कुछ भी, ठीक है। नॉलेज जरूरी है, साथ में आपको मैनर्स भी जरूरी है, एटिकेट भी जरूरी है, ये भी आपको सीखना है, क्योंकि अभी भी आप स्कूल में हो, आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मेरा ये काम है, अगर आप गलत करोगे तो मैं आपको डांटूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको बुरा लगे भला लगे, बट आई विल डू माई जॉब, ठीक है। वेन एवर आई फाइंड दिस इज रॉन्ग, आई विल टेल यू, ठीक है। आपको शुरू में बुरा लगेगा, लेकिन बाद में सोचना ठंडे दिमाग से, मैंने आपकी गलत बोला, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट चीज है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश फाइलम। देखो उसका नोट्स भी मैंने दिया है आपको। फर्स्ट फाइलम जिसको हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। चलो, तो पहला फाइलम है, सॉरी पोरीफेरा, एफीआर है, ओके। तो पहला फाइलम है पोरीफेरा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोरीफेरा जो फाइलम है, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा नाम क्यों पोरीफेरा है। नाम इसलिए है क्योंकि ये जो एनिमल है, इसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस एनिमल इज हैविंग लॉट ऑफ पोर्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज पोरीफेरा। और ये सबसे पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, हम पढ़ने वाले। और किसके अंडर में है, कौन से कैटेगरी में हमने किस ग्रुप में पढ़ रहे हैं हम, ये नॉन क्वाड्रेट्स। मैंने आपको क्या बताया पहले, हम लोग अभी पढ़ेंगे पहले नॉन क्वाड्रेट्स, ठीक है। तो नॉन क्वाड्रेट्स में सबसे पहला फाइलम हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला फाइलम हम पढ़ेंगे पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोरीफेरा का मतलब होता है कि एनिमल हु आर बियरिंग पोर्स, जिसके बॉडी में बहुत सारा पोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं पोरीफेरा, ठीक है। चलो, अब इस फाइलम का सबसे कॉमन एनिमल कौन सा है, अगर हम देखेंगे तो सबसे कॉमन एनिमल जो होता है वो होता है स्पंज और स्पॉन्जिस, ये सबसे कॉमन है। इसी के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब इसी एनिमल को हम एग्जाम्पल लेके इसका इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सबसे कॉमन जो है पोरीफेरा में वो होता है स्पंजिस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस फाइलम का जो एनिमल है, ठीक है, जिसको साइकॉन भी बोलते हैं, साइकॉन भी जो है वो भी है एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब स्टडी अबाउट स्पॉन्ज, क्योंकि हम स्पॉन्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं इस फाइलम में। तो जो स्पॉन्ज के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं पैराजूलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, पैराजूलॉजी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराजूलॉजी। तो स्टडी अबाउट द स्पंजेस इज कॉल्ड पैराजूलॉजी। सो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। ये जो पॉलीफेरा फाइलम है, इसमें जो भी एनिमल्स इसके अंडर में हम पढ़ेंगे उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्पंजेस, ठीक है। कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। देखो सारा पॉइंट जो भी डिस्कस कर रहा हूं एकदम पॉइंट वाइज आपके नोट्स में है, एक एक पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, सो यू कैन चेक इट इन द नोट्स एज वेल। आई विल शो यू द स्लाइड ऑल्सो, सो डोंट वरी। नाउ जॉन एलिस वाज अ टैक्सोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट। अच्छा, टैक्सोनॉमिस्ट किसको बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, हु इज नोन एज टैक्सोनॉमिस्ट, हु इज अ टैक्सोनॉमिस्ट, किसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट कौन है, किसको कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, पता है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि जब हम किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब उसको कैटेगराइज करते हैं
तो वो जो साइंस है, एनिमल्स को क्लासिफाई करने का जो लॉजिकल तरीका है, जो क्राइटेरिया, साइंटिफिक प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, हम उसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, अरेंजिंग और सीक्वेंसिंग, हाँ सही लिखा है, रजिया ने बिल्कुल सही लिखा है, और किसने, जय कुमार ने भी सही लिखा है। स्टडी अबाउट द डिफरेंट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, यस। तो जो हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं, एनिमल्स को ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डालते हैं, तो ये जो कैटेगराइज करने का जो तरीका है, साइंटिफिक जो प्रोसेस, इसको हम कहते हैं, उस सब्जेक्ट को जिसमें हम ये पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। और ये काम जो करते हैं, जो साइंटिस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। 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 ठीक है, चलो। सो जॉन एलिस 1965, he was the first to recognize the sponges as animal. तो जॉन एलिस जो थे, he was a scientist who first time recognized, or he first time identified and discovered that sponges are animals. पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने स्पंज अभी तक देखा है, या उसका फोटोग्राफ देखा होगा आप लोगों ने। अगर उसका फोटोग्राफ आपने देखा है, तो मुझे आप बताओ, क्या स्पंज का फोटोग्राफ देख के लगता है वो एक एनिमल है? नॉर्मली अभी आपके दिमाग में एनिमल का मतलब ही होता है, क्योंकि आपने मैक्सिमम बचपन से लेके अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के बारे में, और एनिमल जो भी ज्यादातर आप देखते हो एनिमल किंगडम में या डिस्कवरी में, तो उसमें आप ज्यादातर क्या देखते हो? जो मूव कर सकते हैं, जो हंटिंग कर रहे हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, इस तरह के। तो आपने कभी, बहुत ही कम आपने ऐसा सोचा होगा कि एनिमल जो है वो बिल्कुल नॉन मोटाइल है, एकदम एक जगह पे सबस्ट्रेटम में अटैच, जिसको हम सिसाइल बोलते हैं। दोज हु आर नॉट एबल टू मूव, दे आर कॉल्ड सिसाइल एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म। तो सिसाइल है, वो एक जगह पे अटैच होकर रहते हैं सबस्ट्रेटम में, वो भी एनिमल का, हाँ बिल्कुल वो एनिमल ही है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट ने? जॉन एलिस 1765 में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज किया कि स्पंजेस जो है, दे आर आल्सो एनिमल, दे आर नॉट any other organism, or they're not plant, or they're not belonging to some other group. They are animals actually, just like us. They're also animal, but their characteristic feature is different. ठीक है, we are mammal, they are phylum, that is porifera। उसके बीच में बहुत डिफरेंस, क्योंकि अगर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पंजेस का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। हमारा तो बहुत एडवांस है, हम लोग क्या है, हम लोग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट है द एनिमल्स विच हैव पोर्स ऑन देयर बॉडी, उसको हम कहते हैं पोरीफेरल्स। ठीक है, पोरीफेरल का मतलब क्या होता है, मैंने शुरू में बताया कि एनिमल दोज हु आर हैविंग पोर ऑन देयर बॉडी, मल्टीपल पोर। अब वो जो पोर है होता है ना, उससे जो उनके बॉडी में क्या होता है, वाटर, पानी जो है उनके बॉडी में अंदर आता है, उस पोर को हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, so those who are actually the animal, those who are having sorry, those who discovered इसने कुछ लिखा है यहाँ पे, साक्षी ने, एपी डी कैंडोले ने भी इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया था, मैं समझा नहीं, ठीक से बोलो। अच्छा, डिस्कवर्ड टैक्सोनॉमी, मैंने तो नहीं कहा कि टैक्सोनॉमी, समझा नहीं साक्षी आपने क्या कहा। एपी कैंडोले ने भी इंट्रोड्यूस किया था, टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था क्या, ये कह रहे हो? टैक्सोनॉमी को किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने थोड़े ना इंट्रोड्यूस किया था। टैक्सोनॉमी इज अ प्रोसेस, ये स्टार्ट हुआ था बहुत शुरू से लेके, आप देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग जो जो प्रोसेस है उन्होंने अप्लाई किया है ना।
are you talking about only poriferans? पॉरीफेरेंस नहीं, पॉरीफेरेंस में तो जॉन एलिस ही मेन थे। देखो मैं आप लोगों की चीज समझाता हूँ। कभी आपने रिसर्च पेपर शायद देखा नहीं होगा, तो देखना उसमें एट ऑल लिखा रहता है, ऐसे एट ऑल। तो उसमें ना ऑथर होता है। ऑथर मतलब फर्स्ट ऑथर होता है, सेकेंड ऑथर होता है, थर्ड ऑथर, ऐसे करके मल्टीपल ऑथर हो जाएंगे। जो फर्स्ट ऑथर होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी का पेपर हम मानते हैं एक्चुअली। मेन जो उसका नाम पहले रहता है वही होता है मेन साइंटिस्ट। तो यहाँ पे जॉन एलिस ही मेन, इसके अलावा भी साइंटिस्ट थे। ऐसा नहीं कि जब पेपर पब्लिश हुआ तो सिर्फ एलिस ही थे वहां उनके साथ। एलिस के साथ और भी साइंटिस्ट थे, दो तीन और थे, लेकिन हम एलिस को ही कंसिडर करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट है दे आर डिप्लोब्लास्टिक। देखो मैं बताया था ना, जो भी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे अभी बार बार वो काम में आएगा। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। पोरिफेरेंस क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। क्या मतलब हुआ इसका? पोरिफेरेंस डिप्लोब्लास्टिक है मतलब स्पंजेस डिप्लोब्लास्टिक है। इससे आप लोग क्या समझे? मैं हमने सिर्फ बताया डिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव टू जर्म लेयर ओनली, ओनली टू जर्म लेयर, मेसोडर्म नहीं है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दे आर टू, दे आर हैविंग देयर टू जर्म लेयर ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। Now, about 5,000 species, about 5,000 species of sponge are known. अभी तक हमें कितने स्पीसीज मिला है स्पंजेस के बारे में? स्पंजेस में 5,000 स्पीसीज अभी तक मिल चुका है। और स्टिल द नंबर इज, वी आर काउंटिंग, स्टिल द नंबर इज ऑन। हर साल हमें कुछ ना कुछ नए तरह के स्पंज अभी भी मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 5,000 से ऊपर ऑलमोस्ट स्पीसीज को हमने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, ये समय ऑडिबल नाउ? बीच में इंटरनेट नहीं था, यस थोड़ा सा इंटरनेट चला गया था। ठीक है, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिगार्डिंग दिस एनिमल, दे आर sessile and aquatic. They are sessile and aquatic। तो ये एक नया वर्ड है जिसको मतलब आप लोगों के लिए जिसने पढ़ा है अच्छी बात है। सेसाइल जो हो, इसका मतलब होता है कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं जो। देखो मैंने शुरू में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था पेलाजिक, बेंथिक, फोर्टिक जोन, ए फोर्टिक जोन, याद होगा आपको। तो जो बेंथिक मतलब क्या होता है? बॉटम। तो बॉटम में सबस्ट्रेटम के साथ जो एनिमल अटैच रहता है, कोई बॉटम में कोई भी सबस्ट्रेटम जो होता है उसके साथ जब एनिमल अटैच हो जाता है और मूव नहीं करता, वहीं पे अटैच रहता है कि पर्टिकुलर लोकेशन में अटैच रहता है और कभी मूव नहीं करता, उसको हम कहते हैं, वैसे उस तरह के एनिमल को हम कहते हैं सिसाइल, नो मूवमेंट। ठीक है, एंड एक्वेटिक। जो स्पंजेस होते हैं ना मैक्सिमम वो मैराइन होते हैं, और बहुत फ्यू अभी तक हमें, जैसे स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर स्पंज।
अदर देन दैट मैक्सिमम स्पॉन्जेस जो भी हमें मिले हैं वो हमें क्या होता है, हमें कहाँ मिलते हैं, मराइन एनवायरमेंट में, मतलब ओशन में, समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्राइटेरिया हो गया। ससाइल होते हैं, मोस्टली मराइन, फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, एग्जांपल स्पॉन्जिला मैंने बताया, पढ़ेंगे हम, उसका डायग्राम भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे अभी आगे। नाउ दे हैव वेरी टाइनी पोर्स और इनलेट्स इन देयर बॉडी। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये एक बॉडी प्लान है जो मैं सिंपल एक माने एक स्कीमेटिक डायग्राम है। आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये एक प्रॉपर एक डायग्राम है समझाने के लिए कि स्पंजेस के बॉडी में जो पैटर्न होता है, मतलब पोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं और किस तरह से। मान लो ये सबस्ट्रेटम है जिसमें स्पंज अटैच है, तो उसका बॉडी ऐसा होगा, लाइक दिस। और उसमें बहुत सारे पोर्स होंगे, देखो मैं भी बना रहा हूँ ऐसे, साफ कर रहा हूँ मैं ना जहां जहां पे, ये सब पोर्स, ये सब पोर्स है। ठीक है, अब यहां से जो होगा, पानी यहां से अंदर आता है, इनके बॉडी में पानी यहां से अंदर आता है थ्रू दिस पोर्स। ठीक है, लाइक दिस। अब ये जो पोर्स है, इसको एक हमने नाम दिया है, इसको हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं इस पोर को हम, ऑस्टिया। ठीक है, द पोर्स what this poriferans or the sponges are having in their body, from actually from where the water is coming inside the body of the animal, those pores are known as ostia. ठीक है, those are known as ostia. चलो, नाउ अब देखो, पानी अंदर आता तो है, या एक आपके बहुत सारे पोर्स से जाता, कहां से, कॉमन टर्मिनल ओपनिंग होता है यहां से, ऐसा। दिस इज द वे इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी। सो दैट टर्मिनल ओपनिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड इट इज नोन एज ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑस्क्यूलम। इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। एंड द कैविटी विच इज प्रेजेंट, अब ये जो बॉडी कैविटी है, मतलब पानी तो अंदर आ रहा है, कैविटी के अंदर बॉडी, मतलब इनके बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्पेस है, जो बॉडी कैविटी है, उसका क्या नाम है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसेल। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसेल। यस, वेरी गुड। ऐसे करो ना, हाँ ऐसे बताओ, तब अच्छा लगता है कि जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, अब बताओ। इट फील्स गुड, इट अच्छी बात है कि आपको पता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, अननेसेसरी अनवांटेड टाइम में मत बताओ। ठीक है, चलो, ठीक है, बिल्कुल सही बोला यहाँ पे, जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ब्रह्म चैतन्य ने सही लिखा है, स्पॉन्जोसेल। रजिया ने भी ऑस्क्यूलम सही लिखा है, प्रणब ने भी सही लिखा है ऑस्क्यूला। रजिया ने भी यहाँ पे सही बताया, ऑस्टिया, बिल्कुल सही है। आई रिपीट, डोंट वरी, आई शो यू द डायग्राम एज वेल। देखो, जो स्पंज होते हैं उनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। चलो मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी। लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, सो दिस इज योर स्पंज। नाउ स्पंज का जो बॉडी होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए। सो स्पंज जो है सबस्ट्रेटम के साथ इस तरह से अटैच होता है, और उसके बॉडी में हमें क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे पोर्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बॉडी में ऐसे बहुत सारे पोर्स मिलेंगे। ठीक है, मल्टीपल पोर्स आर देयर। नाउ दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। ऐसे बहुत सारे पोर्स होंगे जिसके थ्रू पानी जो है इसके बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये दीज आर द इनलेट्स थ्रू विच द वाटर इज कमिंग इनसाइड। सो लेट मी ड्रॉ। तो लेट मी टेक सम अदर कलर। चलो ग्रीन कलर लेते हैं। तो यहां से पानी अंदर आता है। ये जो पोर्स है इनके बॉडी में, इस तरह के पोर्स बहुत होते हैं इनके बॉडी में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोरीफेरेंस। यहां से पानी अंदर आता है, इसको हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, अब पानी आने के बाद किसी जगह से तो बाहर जाना पड़ेगा, तो एक कॉमन स्पेस है मतलब एंटीरियर साइड में। ठीक है, यहां से पानी जो बाहर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम। ठीक है, और ये जो बॉडी कैविटी है इनके अंदर, ये मतलब ये इनका जो स्ट्रक्चर है, अंदर में जो इंटरनल स्पेस है जहां पे पानी आ रहा है और जा रहा है जहां से, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसेल। इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। ठीक है, क्लियर है अभी प्रतीक, क्लियर है आपको।
समझ में आया? वेरी गुड। चलो, नाउ ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो स्पंज जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, वो ससाइल होते हैं, ज्यादातर मराइन होते हैं, कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, and the structure through which the water is coming inside the pores, that is those pores are known as ostia, and जिसके थ्रू पानी बाहर आता है उसको हम बोलते हैं this, the opening they have anterior opening, that is called osculum, and the body cavity is known as spongiocele. यहाँ तक हमें क्लियर है, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो स्पंजेस होते हैं ना, दे आर मोस्टली, ठीक है, मोस्टली दे आर asymmetrical, asymmetrical, mostly they are asymmetrical, ठीक है? जितने भी स्पंजेस होते हैं दे आर मोस्टली asymmetrical, ठीक है? मतलब सिमेट्री हमें नहीं दिखता, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the spongiocele is acts as a common space where the food comes as well as the gaseous exchange takes place. ये ध्यान से समझना, ठीक है? इसका मतलब देखो अभी हमने क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था स्पंज का, मैं फिर से बताता हूँ, ये डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन, ठीक है? एक मिनट। एक मिनट, ठीक से बना नहीं था, चलो ठीक है। ये ऑस्टिया है, जो पोर्स है जिसके थ्रू पानी अंदर आ रहा है, ये ऑस्टिया। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का कलर थोड़ा सा शेडिंग थोड़ा सा खराब, इसलिए तो आपको अजीब लग रहा होगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, मैं इसको ठीक करता हूँ अगले क्लास तक। चलो, so the spongiocele act as a common space where the food comes and the gaseous exchange is taking place. तो क्या कह रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो ये जो स्पेस है, ठीक है, स्पंज की, ये ऑस्टिया है, बीच बीच में जो स्पेस है जिसके थ्रू आपका पानी आ रहा है अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब आगे भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। तो ये फूड जो अंदर आता है, सॉरी, ये जो पानी अंदर आता है, तो पानी के साथ in along with the water all the important organic substances are also coming in which is present inside the water, right? बोलो, पानी में जो भी सब्सटेंसेस होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगा, वो भी तो पानी के साथ इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा, आगे कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, हमने क्या पढ़ा, ये एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बॉडी है। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसमें 2-3 तरह के सेल्स अलग अलग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझो यहाँ पे सेल्स होते हैं, तो सेल से ही तो बना होगा। तो ये जो सेल है, ये पानी जो कंटिन्यूअसली वाटर करंट जो मूव कर रहा है, मतलब ऑस्टिया से अंदर आ रहा है, ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है? ये जो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर से एनवायरमेंट से जो भी सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वो इसके थ्रू जाएगा, और दिस सेल्स विल एब्सॉर्ब दैट सब्सटेंसेस from the water current which is passing through their body cavity or the spongiocele continuously. तो उनके बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू पानी आ रहा है और ऑस्कुलम से जा रहा है कंटिन्यूअसली, वाटर करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो जो पानी में जो भी सब्सटेंसेस है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पहला तो ये। दूसरा है, हमें पता है कि रेस्पिरेशन, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन चाहिए,
और रेस्पिरेशन के बाद क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा। तो ये वाटर करंट में तो डिसॉल्व ऑक्सीजन भी होगा कि नहीं होगा? जो पानी इनके बॉडी में जा रहा है और कंटिन्यूसली निकल रहा है ऑस्क्यूलम से, तो उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। So that exchange of gases is also taking place at the cellular level from where along with this water current. तो जो वाटर करंट उनके बॉडी से कंटिन्यूसली पास हो रहा है, जो पानी उनके बॉडी के थ्रू कंटिन्यूसली पास हो रहा है, उसी पानी से वो क्या करते हैं, फूड भी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। क्या? गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं, O2 और CO2। O2 लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि स्पॉन्जोसील इज एक्ट एज अ कॉमन स्पेस वेयर द फूड कम्स एज वेल एज द गैसेस एक्सचेंज आल्सो टेक प्लेस। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। इफ इज एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। बिना समझ के ओके। कल्पेश ने कहा रिपीट करो, ठीक है रिपीट करूंगा। और कोई? ओके आई विल रिपीट। चलो चलो, और कोई? बाकी सबको समझ में आया? एनी डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? नहीं। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। लेट मी रिपीट अगेन। अच्छा एक मिनट, मेरे पास डायग्राम है तो उसको लेके एक बार अच्छा रहेगा। Let me see the diagram whether I'm having or not. Okay. चलो just wait, my board is, the page is loading. It is very slow. इतने sponges और part to absorb food के जो टाइप्स ऑफ सेल्स है, अभी हम हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो उसमें आप देखना सेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं स्पंजेस में, ठीक है। बट एब्जॉर्प्शन तो होता है सेलुलर लेवल पे, ठीक है। सिर्फ वैरायटी ऑफ हैं, अभी हम देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, अभी तक वहां पे नहीं गए। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज होता है, मतलब ये जो रेस्पिरेशन करते हैं, इनको जो फूड है वो कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, हम वो देख रहे हैं। और रेस्पिरेशन वो कैसे करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इसको कैसे करते हैं। तो सपोज दिस इज द स्पंज और इनके बॉडी में ऐसे पोर्स हैं, पोर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। माय वॉइस इज क्लियर नाउ और इज स्टिल ब्रेकिंग? My voice is clear, still breaking? Okay. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इसलिए ऐसा होता है कभी कभी। Now am I audible? Am I clear? अभी क्या क्लियर है आवाज? या ठीक है। तो स्पीड कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है सडनली, तो इसीलिए होता है फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड, सम टाइम इट हैपेंस।
चलो, सो दिस इज द पोर्स जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया, जिसके थ्रू पानी स्पंज के बॉडी में आता है। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ ऑल द पोर्स। दिस आर द पोर्स जिसके थ्रू पानी अंदर आता है। ठीक है, चलो, तो इसके थ्रू पानी अंदर आता है। अब देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल, इट्स अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये मान लो, इसको अगर हम थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी तो सेल से ही बना होगा। बोलो, सेल से बना होगा कि नहीं? ये तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी में, सेल से बना होगा ना ये पार्ट। इनका सारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेल से बना, राइट। तो अभी क्या होता है कि जब ऑस्टिया के थ्रू पानी यहाँ पे आता है, क्योंकि उनके बॉडी में वाटर जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, और एक कॉमन पाथ से, जो कि आपका ऑस्क्यूलम है, जिसके थ्रू पानी बाहर जा रहा है ना। दिस इज अ कॉमन थिंग, दैट इज अ कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कंटिन्यूसली जो आपका वाटर करंट है वो आपका उनके बॉडी में ये फ्लो हमें दिखेगा। अब देखो, जो उनको फूड कहां से मिलेगा? ये तो मूव कर नहीं सकते, दे आर सेसाइल। सो दैट इज व्हाई दे आर हैविंग दिस सिस्टम where the water is continuously coming inside the inside the body. अभी भी प्रणव या कोई तो कह रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस अभी ब्रेक हो रहा है क्या? ठीक है, so water will come inside through this ostia and it will come out from a common path, anterior opening, that is called osculum. अब इसके जब यहाँ से पानी पास हो रहा है बॉडी कैविटी के थ्रू, बॉडी कैविटी का जो इंटरनल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल ओनली। सो ऑल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 लेना, CO2 रिलीज करना, उसके बाद जो फूड सब्सटेंसेस है उसको भी ऑब्जॉर्व करना, वो कहाँ से होता है? ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जोसील, जो इंटरनल कैविटी है, बॉडी कैविटी है, उसके उसके अंदर, उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो अभी समझ में आया? अभी कोई डाउट है? क्लियर है? कोई डाउट है अभी? जिसने पूछा था उनसे पूछ रहा हूँ, जिनको डाउट था, रिपीट करने के लिए जिन्होंने कहा था। क्लियर है अभी? So this is happening. This is the way the sponge is actually getting the food, and it is utilizing the food for respiration. And for respiration also, it is actually absorbing the O2 and CO2 during that process. ठीक है, मतलब गैसेस एक्सचेंज भी इसी तरह से होता है, और जो फूड जो है उसका एब्जॉर्ब इसी प्रोसेस से होता है। क्योंकि हमने शुरू में क्या देखा कि स्पंजेस जो है, दिस आर सेसाइल, ये तो मूव कर नहीं सकते। सो व्हाट दे डू, दे हैव फाइंड आउट अ प्रोसेस के जिसके थ्रू उनको आपको फूड भी मिल जाए और रेस्पिरेशन भी हो जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, आसपास में जितने भी पानी है उसको कंटिन्यूसली वो क्या करते रहते हैं, अपने बॉडी के थ्रू पास करवाते रहते हैं कंटिन्यूसली, टू गेट फूड एंड गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे ये है अभी उस जो बॉडी वॉल है उनका, उसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, स्पंज का जो बॉडी वॉल है, मतलब स्पंज का जो बॉडी है, अगर हम उसको हिस्टोलॉजी देखेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में, उसको हम मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको देखेंगे डिटेल में, तो हमें क्या मिलेगा? एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो ये जो बॉडी वॉल का मतलब, मैं फिर से आता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, ये है स्पंज एंड दिस इज द बॉडी कैविटी, और हमें पता है यहाँ पे उसके बॉडी कैविटी में पोर्स है। अगर अभी हम इसके बॉडी वॉल, ये वाले पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे, ठीक है, इसको अगर हम स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी अगर हम देखेंगे इसका, तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें ये जो बॉडी वॉल है स्पंजेस का, इसमें हमें 3 लेयर मिलेंगे। क्या क्या लेयर मिलेंगे? लेट मी राइट डाउन। नंबर 1 इज पिनाकोडर्म,
Number 2 is quanoderm. Quanoderm. Number 3 is mesohyal layer. Mesohyal layer. ठीक है, तो पहला क्या होता है? पिनाकोडर्म। दूसरा क्या था? क्वानोडर्म। तीसरा क्या है? मेसोहायल लेयर। 3 लेयर होते हैं। तो मैं पहले लेयर के बारे में थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद मैं डायग्राम दिखा के, मेरे पास डायग्राम यहाँ पे भी है, आपके नोट्स में भी डायग्राम है, तो आप भी उसको खोल लेना, तो हम एक साथ उसको डिस्कस करेंगे। पहले समझ लो कि लेयर में क्या क्या होता है। एक्चुअली ये लेयर होता है पिनाकोडर्म, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। ठीक है, नाउ दिस लेयर इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, फ्लैटेंडेड शेप सेल। पहला तो वो होगा, दूसरा होगा ओवल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो जो फ्लैट एंडेड सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं पिनाकोसाइट्स, इसीलिए उसका नाम पड़ा इस लेयर का पिनाकोडर्म। और जो ओवल शेप का सेल होता है वो कहां पे रहता है? पोर्स में रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्स होगा, तो पोर्स को कवर करने के लिए ऐसे ओवल शेप का सेल होता है जिसको हम कहते हैं पोरोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेयर होता है क्वानोडर्म। नाउ इट इज द इनर cellular layer consists of specialized cells that is flattened. These cells are all, sorry, not flattened, these cells are flagellated, not flattened. So these cells are flagellated, और मैं अगर यहाँ पे बना के दिखाऊंगा तो ऐसा होता है देखने में, like this, ऐसा, और इसमें फ्लैजेला होगा। तो जो इनर मोस्ट वॉल है, मतलब अंदर की तरफ, यहाँ पे देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, इनर मतलब ये वाला पार्ट हम दिखा रहे हैं। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे जो लेयर, यहाँ पे जो सेल्स, जिस सेल से बना होता है ये लेयर, उस सेल का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है क्वाइनोसाइट और कोलार सेल। तो मैंने बना के भी दिखाया, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे से बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे गोल होगा, ठीक है, उसमें से ऐसे स्ट्रक्चर निकलेंगे इस तरह, और उसमें से फ्लैजेला होगा। ये अंदर वाला जो लेयर, अभी हमने क्या पढ़ा? पिनाकोडम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर, इसकी बात कर रहे हैं। ये है आउटर मोस्ट लेयर, ये है पिनाकोडम। और इनर मोस्ट जो लेयर उसको हम बोलते हैं क्वानोडम। क्यों? अभी देखो, हमने अभी पढ़ा पिनाकोडम जो है उसमें क्या होते हैं स्पेशल, अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम में और फिर से दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी, सो डोंट वरी। मैं पहले अभी एक बेसिक समझा रहा हूँ, अभी हम डायग्राम के साथ फिर से डिस्कस करेंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो पिनाकोडम मतलब फ्लैट एंडेड सेल्स होते हैं, जो कि बाहर का लेयर बनाता है इनके बॉडी का। अच्छा, क्वानोडम मतलब अंदर का जो लेयर, इनर मोस्ट लेयर, जो स्पॉन्जोसील का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, वो बनता है क्वानोडर्म से, जो कि जो सेल है, सॉरी, वो जो लेयर उसको क्वानोडर्म बोलते हैं हम। और वहां पे जो सेल होता है, जिस सेल से बनता है आपका क्वानोडर्म जो लेयर, दैट इज कोलार सेल, उसको हम बोलते हैं या तो क्वानोसाइट्स। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जो मिडिल लेयर है उसको हम कहते हैं मेसोहायल लेयर। मतलब ये पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में जो एक लेयर है उसको हम बोलते हैं आपका मेसोहायल लेयर, और दूसरा एक नाम है मीजेनकाइम। क्या कहते हैं? मेसेनकाइम। क्या कहते हैं उसे? मेसेनकाइम। सो इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म। ये जो लेयर होता है इसमें कोई प्रॉपर मतलब सेल नहीं होता, तो ये बेसिकली नॉन लेयर है जिसको हम कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है आपका पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म के बीच में, इसको हम बोलते हैं मेसेनकाइम। ठीक है, नाउ the area between these two membrane, it is actually filled with a gelatinous material। मतलब ये मेसेनहाइम की जो बात कर रहा, मिडिल जो लेयर है मेसोहायल लेयर, ये किससे फिल होता है? एक जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं मेसोग्लिया। डर्म एंड क्वानोडर्म के बीच में जो जगह है, that space is filled with, and that layer is known as mesenhyme and mesohyal layer, and that is filled with gelatinous layer or material which is known as meso। अगर हम उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? वाटर एंड कोलाजन। किससे बना होता है? वाटर एंड कोलाजन। नाउ in this mesohyal layer or this mesoglia, we can find some irregular cells, we can find some irregular cells। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एमीबोसाइट्स। उसमें क्या मिलेगा? कुछ इरेगुलर सेल्स हमें मिलेंगे, हम जिसको कहते हैं एमीबोसाइट। अच्छा, अब ये एमीबोसाइट का फंक्शन क्या है? Basically this amoebocyte they have
फ्यू फंक्शंस, सिर्फ एक फंक्शन नहीं, काफी उसके फंक्शंस है। जैसे कि कोलेजन फाइबर जो है उसको सिक्रीट करना, ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, डिफेंस मतलब एनिमल को बाहर के जो भी पैथोजन है, जो भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है या फिर उनको इफेक्ट कर सकता है, उनसे ये बचाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देन इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड एटसेट्रा। ठीक है, जो भी वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ये अमीबोसाइट हेल्प करता है। ठीक है, अब ये अमीबोसाइट जो सेल है ये मॉडिफाई होके अलग अलग तरह के सेल बन जाते हैं। क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक बार डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आई विल शो यू द डायग्राम, देन वी विल टॉक। यस, not this one. यस, ये वाला देखिए, दिस इज द डायग्राम। ध्यान से देखो, मैं बार बार यही वाला डायग्राम कॉमन आपको बता रहा हूं। तो आप अगर देखोगे तो ये एक एलएस सेक्शन है स्पंज का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑस्टिया है, देखो, जो इतने सारे पोर्स है जो जहां से कि पानी अंदर आ रहा है, और एक कॉमन ओपनिंग है ऊपर की तरफ, देखो लिखा है ऑस्क्यूलम, आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑस्टिया है और एक कॉमन ओपनिंग में पानी बाहर जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? समझ में आया ना क्या बता रहा हूं मैं? डू यू आर यू एबल टू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? समझ में आया ना? ये डायग्राम तो नहीं, सेम डायग्राम है, बस इसमें डिटेल में वो हुआ है और लेयर बना हुआ है, बस यही है और कुछ नहीं। मैंने बस सिंपल एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था। आप यहाँ पे विथ ऑल द इंपॉर्टेंट सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट, वो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया और कुछ नहीं। यस, आई विल डिस्कस अगेन आर्या। ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आर यू एबल व्हाट आई एम शोइंग हियर इन दिस डायग्राम? समझ में आया ना कि ऑस्टिया जो मैंने बताया, क्लियर है ना? वो समझ में आ रहा है? एलएस सेक्शन, एलएस सेक्शन मतलब जब हम किसी भी एनिमल का एक एलएस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनली इसको कट करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पंज को लॉन्गिट्यूडनली कट करके हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर वापस उस डायग्राम में जाऊंगा, नहीं तो आपके मन में डाउट रह जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट ड्रॉ। ओके जय कुमार, जस्ट वेट, आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल ट्राई इन डिफरेंट वे। देखो, स्पंज का अगर हम 3D डायग्राम बनाएंगे ना तो कैसा होगा, देखो, अगर हम उसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे ना तो 3D तो वो होता है ऐसा। ध्यान से देखना, ठीक है, मैंने यहां से कट कर दिया उसको बीच से। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें उसके बॉडी के ऊपर इस फोर्स, समझ में आया? ऐसा होता है। अब मैं अब इसको क्या करूंगा, एक एलएस सेक्शन ले लेता हूं। ठीक है, अभी मैं एक एलएस सेक्शन लूंगा। अब मैं जब एक एलएस सेक्शन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह दिखेगा मुझे। ठीक है, अभी मैंने कट कर दिया है ना इसको, तो मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे इस तरह की, तो यहाँ पे आपको जो कोर्स मैंने बनाया है वो हमें इस तरह साइड से दिखेगा, क्योंकि हमने एलएस सेक्शन ले लिया। समझ में आया ना क्यों हमें पोर्स ऐसा दिख रहा है? बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है ना? जय कुमार, आर्या, समझ में आ रहा है? आप लोगों को डाउट हो रहा था? यस। तो अभी हमने एक 3D डायग्राम बनाया, देखो अभी थोड़ा सा छोटा सा मैंने यहाँ पे बनाया आपको। मैंने दिखाया कि ओस्टिया जो होता है वो एक्चुअली ऊपर में होता है, उसके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर।
तो हम जब उसका एक एलएस सेक्शन लेंगे, ये एलएस सेक्शन है, देखो ये एक लॉन्ग मैंने बीच में से हमने उसको ऊपर से, है ना। तो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो पोर्स है ये है ऑस्टिया ना, ये भी ऑस्टिया है, ये देखो ये भी ऑस्टिया है। हमने यहाँ पे इसका बस हमारा जो व्यू है वो चेंज हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस वॉल को, ये जो बॉडी वॉल है उसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे, ध्यान से देखो, अगर इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या दिखेगा वो देखो, ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कट कर लिया है वॉल, जो उसका बॉडी वॉल है, तो हमने उसको थोड़ा सा यहाँ पे कट किया है, ठीक है। तो इसको हमने मैग्नीफाई किया है। तो ये आप खुद बताओ ये क्या है, ये जो पोर्स आपको दिख रहा है बीच में, व्हाट इज इट, बोलो। ये जो पोर बीच में आपको दिख रहा है, वेरी गुड, ये ऑस्टिया है। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अभी मैं जहां पे ऐसे बार बार पेन लगा रहा हूं, बार बार यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ये है आपका क्वाइनोडर्म। क्या है ये है आपका क्वाइनोडर्म। यहाँ लिखने के लिए जगह कम है इसलिए मैंने सब जस्ट सी से दिखाया, ठीक है, CHO कर देता हूँ, दिस इज क्वाइनोडर्म, ठीक है। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है पिनाकोडर्म। क्या है ये, पिनाकोडर्म। अभी जो क्वाइनोडर्म है, लेट मी चेंज द कलर, ध्यान से देखो, ये जो क्वाइनोडर्म है ये आपको ये कोलर सेल मिलेंगे, क्वाइनोसाइट्स, ऐसे गोल गोल और इस तरह का स्ट्रक्चर, और फ्लैजेला ऐसे गोल गोल, इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे फ्लैजेला ऐसा। ये जो लेयर है इसको कहते हैं क्वाइनोडर्म। क्यों, क्योंकि किससे बना हुआ है, कोलार सेल या क्वाइनोसाइट से बना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्वाइनोडर्म। ये इनर मोस्ट लेयर है बॉडी का, स्पंज का। और पिनाकोडर्म मतलब बाहर वाला लेयर। यहाँ पे कैसा होता है सेल, मैंने पहले ही बताया, फ्लैट एंडेड, ऐसे लॉन्ग फ्लैट एंडेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर हमने पूछा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोर्स होते हैं ना, अभी देखा ना ऑस्टिया, ये ऑस्टिया के बीच बीच में, सॉरी ऑस्टिया, दोनों ऑस्टिया के बीच में यहाँ पे एक लॉन्ग ऐसे लंबा ओवल शेप का पोर सेल होता है, जो कि ये पोर को सपोर्ट करता है, इस लेयर को, बीच का जो लेयर को सपोर्ट करता है। लेट मी चेंज द कलर। अच्छा, अभी आपको क्वाइनोडर्म और पिनाकोडर्म क्लियर है। क्वाइनोडर्म और पिनाकोडर्म जो लेयर है, क्या लोकेशन है दोनों के बीच में, सबको समझ में आया? जो पूछ रहे थे, आर्या, जय कुमार, आया समझ में कि पिनाकोडर्म का लोकेशन क्या है, क्वाइनोडर्म का लोकेशन क्या है, आया समझ में? अब पिनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म, इसके बीच में देखो मैं रेड से शेड कर रहा हूं, ये जो जगह है दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं मिजोहायल और मिजेनकाइम। यहीं पे क्या होता है, जिलेटिनस लेयर होता है, यहाँ पे क्या रहता है, जिलेटिनस सब्सटेंस रहता है इसके बीच में ठीक है सॉरी। पिनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म के बीच में क्या होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। तो मैं थोड़ा सा फिर से इसको क्लियर करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इस जिलेटिनस लेयर में क्या सिचुएशन है। ये जो जिलेटिनस लेयर है इसी को बोलते हैं मिजोग्लिया। और यहाँ पे हमें इरेगुलर सेल्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं एमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, एमीबोसाइट्स। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इरेगुलर सेल्स, इस तरह की इरेगुलर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम इस तरह की इरेगुलर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमीबोसाइट। अब यहां तक समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है सबको? हिस्टोलॉजी हम अभी हम क्या कर रहे हैं, स्पंज का हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्पंज, उसका बॉडी वॉल को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? बताइए ना, हाँ एमोबोसाइट फिर से, मतलब एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। देखो चलो, तो बॉडी वॉल आपको समझ में आया, पिनाको सॉरी कहाँ गया, हाँ, पिनाकोडर्म एंड आपका क्वाइनोडर्म, ये आपको क्लियर है। तो मैं पेज में जाऊं, दूसरा पेज में दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो हम दूसरे पेज में चलते हैं आगे बात करने के लिए, ठीक है। चलो, सो लेट अस अगेन ड्रॉ द सेम डायग्राम, ठीक है। हमें अच्छे से पता है ये बाहर वाला पोर्शन है, ये बना होता है पिनाकोडर्म से, अंदर वाला जो ये बना होता है क्वाइनोडर्म, जिसमें हमको पता है कोलर सेल मतलब जो जिसमें ऐसे फ्लैजेला होगा, ये हमको पता है। और बीच में जो लेयर है, कुमार पूछ रहा है कि सर के बीच में, दो लेयर के बीच में जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या है? मैंने अभी तो बताया आपको, वो एक जिलेटिनस लेयर होता है वो, ठीक है। और बना किससे होता है, जिलेटिनस लेयर का कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो वाटर प्लस कोलाजिन, वाटर प्लस कोलाजिन इसमें बना, इससे बनता है ये, ठीक है।
और इसमें हमें क्या मिलेगा, इर्रेगुलर सेल मिलेंगे, इस तरह के इर्रेगुलर, ऐसे करके इस तरह के इर्रेगुलर सेल, मतलब प्रॉपर शेप नहीं है, इर्रेगुलर मतलब इसका प्रॉपर शेप नहीं है, उस तरह के सेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो एमीबो अलग अलग फंक्शन है, एमीबोसाइट मॉडिफाई होके अलग अलग फंक्शन करता है, बिकॉज इट परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, so we have categorized this amoebocyte according to their function। ठीक है, एक होता है आर्कियोसाइट जो क्या करता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, ये एक टोटीपोटेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। दूसरा होता है ट्रोफोसाइट, दिस आर आल्सो नोन एज नर्व सेल व्हिच प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग सेल्स। तीसरा होता है थेकोसाइट, इट स्टोर फूड ग्रैन्यूल्स। देन फोर्थ होता है ग्लैंड सेल्स, ठीक है, दिस सीक्रेट द स्लाइमी सब्सटेंस। Then ceroblast, it secretes spicules. Then coloblast cell in case of calcareous sponge। इस तरह करके जो आपका जो इरेगुलर सेल्स है जो कि एमीबोसाइट्स है, क्योंकि अभी क्या पड़ा, 5000 अलग अलग तरह के स्पंज है, तो अलग अलग स्पंजेस में अलग अलग कंडीशन में यही अब सेम एमीबोसाइट मॉडिफाई होके अलग अलग फंक्शन करता है। इसीलिए हमने उस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन we have categorized this amoebocyte in different categories। देखो मैंने लिस्ट दिया है आपके नोट्स में, जर्म सेल, उसके बाद क्रोमोसाइट, फेगोसाइट्स, देखा आप लोगों ने, आपके नोट्स में भी है, देखो पेज नंबर होगा आपका 11, पेज नंबर 11 में होगा, देखो। ठीक है, तो पिनाकोडर्म जरूरी है समझना, और दूसरा होता है आपका क्वानोडर्म। उसके बीच में जो लेयर होता है उसको हम, उसमें क्या रहता है, जिलेटिनस सब्सटेंस से बना होता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं मीजोहायल लेयर, और उसको मीजोग्लिया भी बोलते हैं। और वो जिलेटिनस सब्सटेंस अगर आपसे पूछा जाए किससे बना होता है, वॉल से बना होता है। उसमें हमें एक इरेगुलर टाइप के सेल्स मिलते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन हो सकता है अलग अलग स्पंजेस में। तो अभी तक हमने जो भी जो बेसिक स्टडी किया है, तो क्या किया है के जो इरेगुलर सेल्स मतलब एमीबोसाइट्स है, उसके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वी हैव कैटेगराइज्ड देम इन डिफरेंट कैटेगरीज। जरूरी नहीं है कि सारे एमीबोसाइट एक ही स्पंज में मिल जाएंगे। ठीक है, ये समझ लो ध्यान से। अच्छा, और इरेगुलर सेल्स के क्या मिलेंगे इसमें, व्हाट वी विल फाइंड इन द मेसोफाइल, वी कैन फाइंड द एंडोस्केलेटन ऑफ द स्पंज। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पंज का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए स्पंज के पास भी एंडोस्केलेटन है, जो कि क्या है, स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स। ठीक है, मैं फिर से एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं कि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखो अभी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। सो दिस इज द पोर सेल, ये आपका पूरा बड़ा वाला स्ट्रक्चर में बनाता हूं। दिस आर बोथ आर पोर सेल, ये फ्लैट एंडेड सेल इस तरफ होगा पिनाकोडर्म की तरफ, दिस आर फ्लैट एंडेड सेल। सो दिस इज पिनाकोडर्म, यहाँ पे इनर वॉल की तरफ यहाँ पे होगा क्वानोडर्म, कोलार सेल, या जिसको हम, जिसमें क्या फ्लैजेला भी होता है, हमने अभी पढ़ा। और दोनों के बीच में क्या होगा, जिलेटिनस लेयर होगा। ठीक है, और उस जिलेटिनस लेयर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इरेगुलर शेप का सेल। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ, ब्लैक कलर लेते हैं, इरेगुलर सेल मिलेंगे। और इरेगुलर सेल को हमने अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उनको अलग अलग किया है, जो जिसका लिस्ट आपके नोटबुक में है। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स कैसा होता है, ऐसा ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, इस तरह स्पिक्यूल्स ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। रेड कलर से मैंने जो स्पिक्यूल्स। और क्या मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम स्पिक्यूल, स्पंजिन फाइबर्स, वी कैन फाइंड स्पंजिन फाइबर। देखो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये जो स्पंजिन फाइबर और ये जो स्पिक्यूल्स है, ये दोनों, this two structure actually help to actually maintain the framework or the body structure of sponge। तो ये spicules और ये जो spongin fibers है, they are working as an endoskeleton in case of sponges। तो spicules क्या हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, को मैंने बनाया। ठीक है, स्पिक्यूल ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। स्पॉन्जिन फाइबर्स का तो कैसा होता है, दिस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दिस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर in both, sorry, especially in case of the butt sponge or euspongia, the spongin fibers are present। आप जो स्पंज यूज करते हैं ना नहाने के लिए, देखना बथ स्पॉन्ज यूज होता है, आप लोगों ने यूज किया होगा, देखा भी होगा,
उसमें स्पिक्यूल्स नहीं होता, स्पिक्यूल्स की जगह में क्या होता है, स्पंजिन फाइबर्स होता है। ठीक है, और स्पिक्यूल जो है वो भी दो तरह का हो सकता है। पहले तो स्पिक्यूल एक तो ब्रांच या अनब्रांच होगा, दूसरा अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्पिक्यूल इट कैन बी कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज। ये सिलिशियस भी हो सकता है, कैलकेरियस भी हो सकता है, मतलब सिलिका इसका कॉम्पोजिशन हो सकता है और कैल्शियम इसका कॉम्पोजिशन, तो दो कॉम्पोजिशन इसके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। क्या आपको क्लियर है अभी तक हमने जो डिस्कस किया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जहां तक पढ़ा है मैंने क्लियर है? एक बार मेरा नोट्स देखना, एक बार करना, और ट्रूमैन का बुक अगर आ गया है आपके पास तो उसमें ये डायग्राम भी दिया हुआ है। आई विल शो यू द डायग्राम अगेन। जो हमने डायग्राम में दिखाया था उसको देख लेते एक बार। फटाफट देख लेते हैं, टाइम कम है। देखो ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्टिया है, आउटर मोस्ट जो लेयर देखो उसको पिनाकोडम कहते हैं, इनर मोस्ट जो लेयर उसको हम बोलते हैं क्वाइनोडर्म, बीच में मिजोहाइल में आपको स्पिक्यूल्स भी दिख है, अनब्रांच स्पिक्यूल दिख रहा होगा आपको, और इनमोस्ट जो लेयर उसमें आप देखो कॉलर सेल है, कॉलर सेल। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था, तो अभी इसको आप देखो तो अभी आपको और क्लैरिटी आएगी। तो ठीक है, बुक में भी होगा ये डायग्राम, यू कैन चेक इट आउट एंड होप टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस इट इज क्लियर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो हम कल डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉट अ इशू। अच्छा, अभी किस्ती जा, अभी टाइम बहुत कम है तो हम कल डिस्कस करते हैं, आपको जो भी डाउट है कल पूछ लो। तो अभी 30 सेकेंड्स, अब यू जस्ट रीड माय नोट्स एंड रीड द बुक, एनीवे इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क। ठीक है, ठीक है ना, चलो बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड हैव पेशेंस। ठीक है।